So in the essay discussion class today, we'll be starting with the agree disagree essay. This is one type of an opinion essay for all those who have joined my class first day. I must tell you that this is, each class of mine in which I discuss essays caters to the beginners also and to the senior students also who have already been with me for a few days. So all classes cater to how to handle each type of essay. So one of my senior student will tell you all how many, basically what 3 type of essay categories are there in the IELTS essay. Can anybody speak out? Hemli, would you like to tell everyone? Yes, ma'am. Yeah, how many types of essay, how many essay types are there basically? Broad 3 categories, name them. Opinion essay. Yes. Or problem or cause and solution. Yes, very good. Very and good. And advantage, disadvantage. No, advantage, disadvantage is one type of opinion essay. Yes, ma'am. So third type is, question answer, ma'am. no, that comes in the problem solution category. Yeah. Yes, ma'am. So what is the third type? Anybody else? Discuss essay. Very good. Discuss. Very good. Yes, it is the discuss Yes, essay. Emily, your concepts are clear now? Yes, The broad 3 categories are opinion essay, discuss Yes, essay, problem solution essay. Okay? जो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे है वो कौन सी कैटेगरी में डाल देती हूँ मैं? प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, बिकॉज 3-4 ऐसे हैं 450 में से, और जस्ट जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हैंडल करना है वैसे ही उसको हैंडल करना है. ठीक है? एंड ओपिनियन ऐसे आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. Yes, anybody would like to tell me what 3 types of opinion essay? Kajal ba, I can see you here. Maithili, you can answer. Yes. Opinion essay 3 types. The three ways in which an opinion essay can be asked. Handling is the same. There's no difference in handling. But there are 3 ways in which opinion essay can be asked. Ma'am, advantage, disadvantage. Yes, you are the advantages more than the disadvantages, like that. Then it becomes an opinion essay. Okay. Okay. Then second type. Yes, ma'am. Second type. Agree, disagree. Yes, agree, disagree. Very good. And the third type. Very good. Come on, anybody? Yes. Positive, negative. Yes, very good. Positive, Positive and negative. yes, ma'am. Dekho, what is the meaning of opinion? Opinion means राय. Okay, जहां आपकी राय पूछी गई है वो opinion essay है. Okay. Discuss essay में बोलते हैं discuss both views and give your opinion. और पहले कह देते हैं ना discuss both views. तो discuss essay हो जाता है वो. और आप देखो ये क्या अजीब बात है कि जो ओपिनियन ऐसे है उसके टॉपिक में कभी ओपिनियन वर्ड नहीं आता. उसमें आता है डू यू एग्री और डिसएग्री, ओपिनियन वर्ड तो आया ही नहीं. आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस, ओपिनियन वर्ड तो आया ही नहीं. फिर आता है इज इट अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, ओपिनियन वर्ड तो आया ही नहीं. पर ये तीनों ऐसे ओपिनियन ऐसे हैं. ठीक है? और जिस ऐसे में ओपिनियन वर्ड आता है जैसे डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, वो ओपिनियन ऐसे है ही नहीं. Isn't it strange and funny? Yes. ठीक है. तो डिस्कस ऐसे में किसी और के व्यूज है वो भी अभी आएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ओपिनियन ऐसे का एक टाइप है एग्री डिसएग्री, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ द ओपिनियन ऐसे दैट वी आर गोइंग टू look into at number 1 place. Now, Anas, are you there? Okay, not there. Jobanpreet, are you there? No. Swinal, are you there? Manisha? Okay. अब कई बच्चों के नाम ही आईफोन है या वो उनको मैं पता नहीं क्या बुलाऊं. आईफोन, आर यू देयर? Okay. और कोई नाम है ऐसा मजेदार? Oppo. Okay. Anyways, how can we handle an agree disagree essay?
You can strongly agree or strongly disagree, or you can agree with a concession or disagree with a concession. Okay, now slowly you will come to know what I mean by the word concession. And one thing which I want to tell you, which I tell in every class, and yet some student who is there in the class will ask me later on the same question. Okay, that is that do you agree or disagree, and to what extent do you agree or disagree? इसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है. I tell in each and every class, it is absolutely the same. It is just a way of asking. Extent नहीं लिखने लग जाना कि मैं तो जी 30% तक एग्री करती हूँ और 70% तक डिसएग्री करती हूँ. Extent का कुछ मतलब नहीं है. It is just a way of asking. The thing is, do you agree or disagree, and to what extent do you agree or disagree को बिल्कुल same handle करना. It makes no difference. Okay. Now you can either strongly disagree or agree. Let us see this question. ये कह रहा है it is important, ये बहुत important है for all towns and cities, सारे towns and cities के लिए, to have large public outdoor places like squares and parks. बड़ी बड़ी public outdoor places जहाँ पे public इकट्ठी हो सके, जैसे कोई squares है या parks हैं. क्या आप इसके साथ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? इसके साथ बताओ, आप इसके साथ असहमत हो सकते हो कि बड़े टाउन्स एंड सिटीज में ऐसे पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए? आप असहमत हो सकते हो कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल. No. तो No, ma'am. ऑब्वियसली इसके साथ हम स्ट्रांगली एग्री कर जाएंगे. Yes. ठीक है. So sorry. One type of ending is strongly agree. Okay. Now we'll read this essay and see how we have written it. What is very important is in the essay is how you handle the intro and the conclusion. Intro and the conclusion should be brief and very crisp. Crisp का मतलब पता है? क्रिस्प होती है, बिल्कुल टू द पॉइंट. जैसे आप कोई भी चीज क्रिस्प होगी, जो सॉगी हो जाएगी, ब्रेड सॉगी हो जाती है, बन सॉगी हो जाता है, आपका खाने का भी मन नहीं करता. ऐसे ही ना एग्जामिनर का पढ़ने का मन नहीं करेगा अगर आप सॉगी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बड़ी बड़ी मोटी मोटी फूली हुई दे दोगे. फूली हुई नहीं होनी चाहिए. ठीक है. टू द पॉइंट एंड ब्रीफ. ठीक है. आंसर करे क्वेश्चन को और एग्जामिनर को बता दे कि आपने इस एसे में एग्जामिनर को क्या बताना है. राइट. दैट इज गोइंग टू फेच यू अ 7 और +7. दैट इंट्रोडक्शन. आप उसको सॉगी कर दो, मोटा कर दो, रुई भर के, वो एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करने वाली. ठीक है. सो बिल्कुल ब्रीफ एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन देनी है. लेट अस सी दिस इंट्रोडक्शन. इट इज बिलीव्ड बाय सम that public spaces such as squares and parks inside cities are very much needed in today's era. So ये कोई लोग believe कर रहे हैं ना. आप कोई भी जो statement होती है agree disagree वाली, either it is a fact or somebody has said it. Fact होता है जो सच्चाई है. अब ये जो है it is important, ये कोई कह रहा है कि कोई सच्चाई है. आपको पता चल रहा है इस बात का कि कोई कह ही रहा हो सकता है ये सच्चाई है, तो ऐसे कोई fact तो है नहीं. ठीक है. So it is believed by some that public spaces such as squares and parks inside cities are very much needed in today's era. तो cities है, question में है cities and town. तो यहाँ पे हम cities and towns के लिए इकट्ठा कोई word change करके लिख सकते हैं. urban areas कर सकते हैं. Yes, ma'am. हाँ. Yes. So I think it is imperative. Imperative is ज़रूरी, very very important for all urban areas to have such outdoor places as they improve the nation's health, boost social cohesion, and improve economies. Okay, as they improve the nation's health, boost social cohesion, and improve economies. अब मैंने पता है क्या करा इस हिस्से में, मैंने strongly agree करा है और पता चल रहा है आपको मैंने strongly agree करा है. मैंने वर्ड नहीं डाला आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस. जरूरत भी नहीं होती उसको डालने की. ठीक है. और मैंने 3 पॉइंट से 3 पैरे बनाने हैं, मैंने उन पैरास को 3 पॉइंट्स को यहाँ पे नेम कर दिया है. दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन. यू नीड नॉट डू दैट. You can still you can just write I strongly agree with this statement as I think such places are very important. बस ये सबसे सिंपल है, ये आप लिख सकते हो.
पर ऐसे लिखना भी सही है जो लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स है मेरे पास, 3 पैरे मैंने बनाने इनके, तो वो आप ऐसे लिखो. ओके, नाउ improve public nation's health लिखा है. So there are many advantages of having outdoor places such as squares and parks inside cities and towns. There are many advantages of having. इससे पता चल रहा है, मैं पैरे में advantages डालने वाली हूँ. अगर पता चल रहा है then this is a good topic sentence. Topic sentence होता है first sentence of the paragraph which tells the examiner what is going to be in the paragraph. Okay. So there are many advantages of having outdoor places such as squares and parks inside cities and towns. Firstly, these facilities have a major role in improving the overall health and wellness of the individuals and the community. अब मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा था, नेशंस हेल्थ. नेशन की हेल्थ किनके साथ है, इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटी की, वही है ना नेशन के पार्ट्स. तो these facilities have a major role in improving. फिर मैंने लिखा है people with easy access to these facilities are physically more active and tend to spend more time outdoors breathing the fresh air. मैंने इसी पॉइंट को अब एक्सपैंड करा है. जिन लोगों के पास easy access है इन फैसिलिटीज की, जैसे कोई स्क्वायर्स हैं या पार्क्स हैं, जिनके घर के पास पार्क है वो उसमें घूमने भी चले ही जाते हैं, ठीक है, वो फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं और काफी टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं फ्रेश एयर ब्रीथ करते हुए. They create a healthy environment as plants and trees reduce pollution and improve air quality. वो एक healthy environment create करते हैं क्योंकि ये जो plants and trees हैं ये pollution remove करते हैं और air quality improve करते हैं. In addition, these green spaces in the middle of a congested urban landscape provides a connection to nature which relieves stress and improves mental health. तो मैंने इस पैरे में पूरे में लोगों की हेल्थ की बात करी, नेशन की हेल्थ की बात करी. Yes. और किस वे में नेशन की हेल्थ इंप्रूव होती है, पहले तो वो लोग फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं और बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. दूसरा मैंने कह दिया कि प्लांट जो है वो एयर क्वालिटी बेटर करते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं. फिर मैंने ये तीसरा पॉइंट कर दिया कि जो ग्रीन स्पेसेस होती हैं, आजकल जो सिटीज हैं वो कॉन्क्रीट जंगल्स बन चुके हैं. जंगल क्या होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हों, पर कॉन्क्रीट जंगल क्या होते हैं, जहाँ पे सीमेंट के पेड़ पौधे हों. सीमेंट के पेड़ पौधे क्या है, हमारी बिल्डिंग्स. तो हमारी जो सिटीज हैं वो क्या बन चुकी हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स. तो इन जंगल्स के बीच में अगर पेड़ पौधों वाले थोड़े से पेड़ पौधे आ जाएं, ऐसी प्लेसेस आ जाएं, तो वो एक नेचर के साथ रिलेशन हो जाता है लोगों का. उससे क्या होता है, स्ट्रेस रिमूव होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है. तो हमने किस किस चीज की बात कर दी, हमने फिजिकल हेल्थ की बात कर दी, हमने मेंटल हेल्थ की बात कर दी. ठीक है, इस पैरे में पूरी हमने नेशंस हेल्थ की बात कर दी. तो मैंने इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट रखे थे, नेशंस हेल्थ, तो मैंने नेशंस हेल्थ को पैरा डेडिकेट कर दिया. पता चल रहा है पैरा. सेकेंड पैरा, सेकेंड पॉइंट मेरा था इकोनॉमी का. ओके, secondly, these parks and squares boost the economy of the towns and cities. These spaces can earn revenue for their town, for the town, by hosting musical concerts, farmers markets, art shows. आपको पता है जो ऐसे कोई स्क्वायर्स होते हैं या बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, उनमें कोई शोज हो जाते हैं, कई बार कोई कॉन्सर्ट है होल्ड हो जाता है, कोई फार्मर्स मार्केट का मंडी लगा देते हैं फार्मर एक दिन हफ्ते में. ऐसे होता है आपके एरियाज में होता है, एक दिन इस दिन हमारे पास में मंडी है जी, सब्जी मंडी है, उस दिन यहाँ आ जाएगी एक दिन, फिर सब लोग हफ्ते की सब्जी खरीद लेते हैं जो पास में होते हैं. यस, तो इन एरियाज में फार्मर्स मार्केट लग सकती है, म्यूजिक कॉन्सर्ट लग सकता है, आर्ट शोज हो सकते हैं. ठीक है, तो इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है. दे ऑल्सो एड आइडेंटिटी टू ए प्लेस, ये प्लेस को एक पहचान दिलाते हैं और टेंड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इससे सारी दुनिया से टूरिस्ट जो हैं वो वहां आते हैं. देखो कोई भी स्क्वायर है, अब 17 सेक्टर चंडीगढ़ में वो एक स्क्वायर की तरह ही है. वहां पे लोग जस्ट टाइम स्पेंड करने बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं ना, उनको भी कहते हैं कि चलो 17 घुमाए आपको, तो वहां जाते हैं. ऐसे कई कंट्रीज में ऐसे स्क्वायर्स हैं जहाँ लोग जाते हैं स्पेशली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. टूरिज्म से जो आसपास के बिजनेसेस हैं उनके भी बिजनेसेस भी बढ़ती हैं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स खुलते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई नेबरहुड्स जो विसिनिटी ऑफ दीज प्लेसेस हैं वो बिजनेस लोकेशंस के लिए बहुत सॉर्ट आफ्टर प्लेसेस हो जाती है. कहीं पे कोई ऐसी जगह है उसके आसपास देखो प्रॉपर्टी के रेट्स ही डबल होते हैं. ठीक है,
तो ये आपको दूसरा पॉइंट मैंने इकोनॉमी, और इसमें मैंने कोई खिचड़ी नहीं पकाई, इकोनॉमी को टच करा है तो मैंने इकोनॉमी में कोई और पॉइंट नहीं लाई हूँ, सारे पैरे में इकोनॉमी की बात हुई है, किस किस वे से इकोनॉमी इंप्रूव होती है। ये समझ आ रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके, थर्ड पैरा है, फाइनली पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस facilitate social interaction and increase the solidarity within communities. ये social interaction facilitate करते हैं parks and open spaces हैं, और इससे क्या होता है, solidarity within communities, आपसी भाईचारा और solid एक unity communities के बीच में increase होती है. People get to know one another, learn about one another's culture and discuss common interests, concerns and goals. More people outside their homes also make neighborhoods safer. और जो अगर ज्यादा लोग होते हैं घरों के बाहर निकल के बातें करते हैं तो उससे सारा नेबरहुड सेफर होता है, क्योंकि कोई और बंदा पहचाना भी जाता है जल्दी से. ठीक है, दे ऑल्सो मेक्स नेबरहुड सेफर. टू कंक्लूड, अब कंक्लूजन देखो, large open spaces such as parks and squares are absolutely essential for all towns and cities as they serve many important purposes. ठीक है, अब कंक्लूजन भी क्रिस्प, ब्रीफ, टू द पॉइंट है. कुछ लंबा करा मैंने इसमें? No, ma'am. जितना मैं लंबा करूंगी मेरा चांस होएगा मैं कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर कर दूं तो मेरे बैंड बढ़ने की बजाय कम होंगे. ठीक है, तो छोटी सी इंट्रोडक्शन, ब्रीफ सी, छोटी सी कंक्लूजन, टू द पॉइंट, टेलिंग द एग्जामिनर क्या बताना है, और फिर 3 पैरे बीच में बना दो, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट इज फॉर द IELTS essay. It's an easy thing to handle. I think आपको agree disagree essay में strongly agree समझ आ गया? कोई पॉइंट मैंने दूसरी साइड का दिया है? No, ma'am. This is strongly agree. ठीक है, now let us see this essay. ये इसमें मैंने थोड़े से चेंज करे हैं तो I'll just put it in red because मेरे को बाद में बताना है अपने पब्लिशर को. I have a question. Yes. मैम जैसे आप बताते हो कि इंट्रो में हमें कोशिश यही करनी है कि 2 लाइन इंट्रो बनाए. हाँ, और यस मैम 2 सेंटेंस का. तो मैम सम ऑफ द टाइम जैसे क्वेश्चन में आता है कि some people think that and other people believe in this. डिस्कस ऐसे है ना, डिस्कस ऐसे, उसमें एक लाइन आती है इन दिस ऐसे I'll discuss both, तो 3 सेंटेंस बन जाते हैं. तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मेरे भी किसी ऐसे में 3 बने हुए हैं, पर देखो अगर 450 ऐसेज हैं बुक में तो 400 ऐसे में 2 सेंटेंस है. ओके मैम, ठीक है. और मैम जैसे हम सम पीपल वाली जब लाइन लिखते हैं तो वो जो दो लोगों का हमने बताना है वो हम कॉमा में करके कर सकते हैं ना, वो तो एक लाइन में फिर आ वो जाएगा. तो एक सेंटेंस में हो जाएगा ना, whereas others say that, एक सेंटेंस हो जाएगा ना वो. फिर अब वो तो इंद्रुप तो मेरा बेटा तो कहता है मम्मा वो लाइन भी क्यों लिखवाते हो इन दिस ऐसे I'll discuss both, वो भी मत लिखवाओ, अपना व्यू लिखवा दो. अंदर हैंडलिंग में तो आपने बताना ही है कि why some people say this, why other people say that, so it's going to be clear as it is that it's a discuss ऐसे. ठीक है, और मैं वो लिखवा देती हूँ क्योंकि कई बच्चे ना फिर बॉडी में वो हैंडल नहीं कर पाते, और इंट्रो में भी नहीं हैंडल हुआ, बॉडी में भी नहीं हुआ, तो बहुत नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम, वो लाइन एक छोटी सी लिख दो, दैट इज टू बी ऑन द सेफर साइड. ओके ओके मैम. मैम अगर ऐसे वाली लाइन पे इन केस उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि आई इंटेंड टू डिस्कस बोथ व्यूज. हाँ, वो तो वही तो मैं कह रही हूँ, चाहे वही लिख दो इन दिस ऐसे I'll discuss both views या I intend to discuss both views, कोई फर्क थोड़ी है उसमें. ओके मैम, ठीक है मैम. वो तो मैं कह रही हूँ ना, ऐसे लिख दो. ठीक है मैम. Okay, now let us see this question and Maithili you will tell me ये agree ये क्या है, opinion है, discuss है कि problem solution है, ऐसे का topic पढ़ो. In some cities there are few controls on the design, construction of homes, office buildings, and the owners can decide on the style of their houses. Do the advantages of this outweigh the disadvantage? मैम इसमें ये इन्होंने पूछा कि advantages ज्यादा है क्या disadvantages से? 409 नंबर है आपकी. हाँ देखो, फिर ये कौन सा ब्रॉड कैटेगरी का ऐसे है? मैम ये ओपिनियन का. Very good. Okay, very good. Okay. Now let us read the topic 2-3 times and see what it actually means. In some cities, कुछ cities में there are few controls. अब मैं आपको बताऊं, few, a few और quite a few.
अच्छा पहले तो मुझे few और little का difference बताओ. What is the difference in few and little? मैम फ्यू का मतलब मैम तो ये होता है कि जो बिल्कुल भी नहीं। नहीं वो बात नहीं नहीं पूछ रही मैं, है। आपसे पूछ रही few और little का difference बताओ. अच्छा मैम ना यूज बराबर। किया है, इसका मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है डिजाइन पे, नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं पे। वो मैं मैम बात नहीं few पूछ रही, मतलब अभी मैम अभी forget about that. मैं अभी पूछ रही हूँ, tell me the difference in few and little. मैम few में काउंटेबल होती है और लिटिल में नॉन काउंटेबल। बलजीत very good. That is what I was asking. क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, एग्जामिनर कुछ पूछेगा आप कुछ और बोलोगे तो बैंड नहीं आने स्पीकिंग में भी. ओके ठीक ओके है. मैम। मैंने पूछा फ्यू और लिटिल का डिफरेंस बताओ. फ्यू इज फॉर काउंटेबल थिंग्स एंड लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स. आपको जब जो चीज काउंट कर सकते हो आपने कहनी है थोड़ी सी तो वो फ्यू होगी, और जो अनकाउंट जो काउंट नहीं कर सकते हो, कई चीजें काउंट नहीं की जा सकती, उसमें आप लिटिल यूज करते हो. ही हैज लिटिल नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आप काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल है, यस मैम। हाँ ठीक है. और फ्यू होता है काउंटेबल. फ्यू कंट्रोल्स ऑन डिजाइन, डिजाइन के जो कंट्रोल्स हैं, कोई लॉज हैं, कोई रूल्स हैं, वो काउंट कर सकते हो ना, तो फ्यू वर्ड आया. अब फ्यू और लिटिल का डिफरेंस पता चल गया. अब मैं आपको 3 वर्ड्स और देती हूँ, फ्यू, अ फ्यू एंड क्वाइट अ फ्यू. और सेम चीज होल्ड ट्रू करती है फॉर लिटिल, अ लिटिल एंड क्वाइट अ लिटिल. सेम है, मतलब वो सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस है, बाकी सेम है. तो फ्यू, अ फ्यू एंड क्वाइट अ फ्यू का क्या फर्क है? मैम फ्यू का मतलब तो होता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और yes, it is फ्यू का negative. होता है कि देखो थोड़ा सा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं से ये मतलब है ना के बराबर। ये नेगेटिव है, ना ना के के बराबर है. ठीक है. अगर 100 में से एक जना कुछ कर रहा है तो हम फ्यू ही बोलेंगे, अ फ्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो Yes, ma'am. ना के बराबर है. समझ गए? तो इट इज नेगेटिव कॉनोटेशन. फ्यू इज नेगेटिव, फ्यू मीन्स नो. As far as your reading made yes no not given is concerned, few and little means no, it means zero. Okay. A few means थोड़े से. थोड़े से। Quite a few means बहुत सारे. अब देखो तीनों में few word आया है और तीनों में मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है. कुछ सिटीज में देर आर फ्यू कंट्रोल्स. अब बच्चे अगर आप इसको थोड़े से कंट्रोल्स हैं करके ऐसे बनाओगे, आपका ऐसे पूरा रॉन्ग नोट पे चला जाएगा. समझ आई बात? हमने Yes, यहाँ ma'am. कहना है कि कुछ सिटीज में कोई कंट्रोल्स ही नहीं है डिजाइन कंस्ट्रक्शन के, घरों के, ऑफिस के, और जो ओनर्स हैं किसी भी स्टाइल से अपना घर बना सकते हैं. ठीक है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे रूल होता है आगे 10 फुट छोड़ना है, 15 फुट छोड़ना है, पीछे 10 फुट छोड़ना है. पूडा के रूल्स हैं, यहाँ पंजाब में पूडा है, ऐसे हरियाणा में, हिमाचल में हुडा है, ऐसे होता है. ठीक है. अब यहाँ पे रूल्स हैं, आगे पीछे जगह छोड़नी है, आप ट्रिपल स्टोरी 4 स्टोरी नहीं बना सकते हो. तो ये जो रूल्स हैं, ये कुछ सिटीज में ऐसे कोई रूल्स ही नहीं है. तो एक जो बंदा है वो अपना घर 5 मंजिला बना लेगा, दूसरे वाले का सिंगल ग्राउंड फ्लोर ही है, तीसरे वाला जैसे मर्जी बना ले, चौथा बिल्कुल आगे से दरवाजा बिल्कुल सड़क पे दे दे, 5वें जो मर्जी करे कोई. समझ गए? तो कोई कंट्रोल्स ही नहीं है डिजाइन के, घरों के कोई कंट्रोल नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग्स के कोई कंट्रोल नहीं है, और जो ओनर है वो डिसाइड कर सकता है उसको क्या करना है. क्या इस चीज के कंट्रोल्स नहीं होने के फायदे इसके नुकसानों से ज्यादा है? नाउ इन 3 टाइप्स ऑफ ओपिनियन एसे, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ओपिनियन एसे. पहला टाइप हमने करा डू यू एग्री और डिसएग्री. अब ये ऐसे हम कर रहे हैं डू द एडवांटेजेस आउटवे द ड्रॉबैक्स. अब एग्री डिसएग्री ऐसे में आपने स्ट्रांगली एग्री करा, अभी आप हमने करा स्ट्रांगली एग्री. Yes, ma'am. हम वन साइडेड जा सके ना? Yes, ma'am. इस ऐसे में हम वन साइडेड नहीं जा सकते, क्योंकि टॉपिक कह रहा है कि ये जो कंट्रोल जीरो है इसके फायदे भी है, नुकसान भी है. आपकी राय सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है. आप लिख सकते हो फायदे ज्यादा है तो आप 2 पैरे फायदों के 1 पैरा नुकसान का बना दो. आप लिख सकते हो कि नुकसान ज्यादा है, 2 पैरे नुकसानों के 1 पैरा फायदे का बना दो. और आप लिख सकते हो कि दोनों बराबर है, 1 पैरा फायदों का 1 नुकसान का बना दो. आप जो लिखोगे इंट्रोडक्शन में आपका एसे उस पे रेस्ट कर रहा है. तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपके एसे का बेस है. अगर आपकी इंट्रोडक्शन क्लियर कट स्टैंड दे रही है
तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है ना, मैं अपना वीडियो ऑन कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। ओके सी, आपकी जो इंट्रोडक्शन है ना वो आपके एस्से का बेस है। अगर आपकी इंट्रोडक्शन सॉलिड है तो एस्से उसके ऊपर रेस्ट करेगा। अगर आपकी इंट्रोडक्शन डावाडोल है, आप कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो ऐसे गिर जाएगा ना। अब ये मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग लग रही है आपको? मैं छोड़ूंगी फोन तो खड़ा रहेगा कि गिर जाएगा? गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है, अब मैं फोन छोड़ूंगी तो खड़ा रहेगा? मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन में आपको स्टैंड लेना है। अगर आप स्टैंड लोगे और बताओगे कि आपका ये स्टैंड है, तो आपकी इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपका ऐसे खड़ा रहेगा, अच्छे बैंड आ जाएंगे। आपकी इंट्रोडक्शन में आपने कुछ नहीं किया, आपने बताया ही नहीं, आप सिर्फ ये लिख दो, आई एम गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग नो रूल्स, नो कंट्रोल, तो आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो आपकी इंट्रोडक्शन ये है और आपका ऐसे क्या होएगा? Damadol. डावाडोल। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जीटी में ना कई बार सिंपल पूछ लेते हैं, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। उसमें आपको जरूरत नहीं है लिखने की कि क्या ज्यादा है क्या कम है, फिर भी मैं एडवाइस करती हूँ कि लिख दो। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट बीन आस्क्ड, राइट? सो जीटी स्टूडेंट्स भी हैं मेरी क्लास में, तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? अब आप देखो, ऐसे कह रहा है कि कुछ इस ऐसे में एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे में, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट वो भी तीसरी तरह का एग्रीड ओपिनियन ऐसे है ना, उसमें भी आप वन साइडेड जा सकते हो। आप बोल सकते हो इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, आप बिल्कुल नेगेटिव का कोई पॉइंट नहीं डालोगे तो भी आपका ऐसे करेक्ट है। गेट इट? समझ आ रही है ना मेरी बात? यस मैम। पर यही तीन ऐसे हैं ओपिनियन ऐसे, एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें सिर्फ इतना सा थोड़ा सा फर्क है कि एग्री डिसएग्री में और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में आप वन साइडेड जा सकते हो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में आप वन साइडेड नहीं जा सकते हो। तो इसलिए बस यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है हैंडलिंग में, नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, सो एक आपको ये क्लैरिटी हो गई कि ये ओपिनियन ऐसे है, हम इसमें टू साइडेड ही जा सकते हैं, वन साइडेड नहीं जा सकते। हाँ, वन साइड को आप ज्यादा लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपने कहा कि एडवांटेजेस ज्यादा है तो एडवांटेजेस के 2 पैरे बना दो, डिसएडवांटेजेस का 1 बना दो। अगर आप कहते हो डिसएडवांटेजेस ज्यादा है तो डिसएडवांटेजेस के 2 पैरे बना दो, एडवांटेजेस का 1 पैरा बना दो। और जो इसमें ये वाइल वाला सेंटेंस लिखना है हमने, वाइल वाला सेंटेंस, ये वाइल वाला सेंटेंस हम पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में और एग्री डिसएग्री ऐसे में टू साइडेड जाने के लिए ये वाला सेंटेंस उनमें भी ऐसे ही डाल सकते हैं। ओपिनियन ऐसे तीनों में एक तरह का ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं है वाइल सेंटेंस। ये क्लियर हो गया? क्लैरिटी देखो, पढ़ाते पढ़ाते आई हैव ग्रोन सो मच कि मुझे बहुत क्लैरिटी से बच्चों को समझाना आ गया कि आप ऐसे हैंडल कर दो। बिल्कुल सिंपल है, वाइल सेंटेंस तीनों एसेस में आ सकता है, ओपिनियन एसेस में, जिनमें आपको दोनों साइड जाना है। पॉजिटिव नेगेटिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में तो जाना ही जाना है, इसमें तो वाइल सेंटेंस आएगा ही आएगा। इसके लिए आपने वाइल सेंटेंस लिखना सीख लिया तो आपको ये सेंटेंस कंसेशन वाले एग्री डिसएग्री ऐसे में एंड कंसेशन वाले पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में भी डालना आ जाएगा। क्लियर? क्लैरिटी 100% है कि नहीं? यस मैम। ओके, नाउ लेट अस सी। ये इन सम सिटीज देयर आर फ्यू कंट्रोल्स ऑन द डिजाइन कंस्ट्रक्शन। ये फैक्ट है कि कोई कह रहा है? ये आपको पता चल रहा है? कोई फैक्ट है कि कोई कह रहा है? इट्स फैक्ट। फैक्ट है, क्योंकि देखो कुछ सिटीज में उन्होंने बोला कि कंट्रोल नहीं है, तो ये फैक्ट है। कोई कह थोड़ी रहा है कि कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कंट्रोल नहीं है तो नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है? इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रेगुलेशंस एंड रूल्स फॉर बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में, ठीक है? अब मेरा जो मेन स्टेटमेंट है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर मेरे एसे ने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट, जिसके ऊपर मेरे एसे ने रेस्ट करना है। आपने थीसिस स्टेटमेंट अच्छा बनाया तो आपका एसे रेस्ट करेगा और आपके एसे के अच्छे बैंड आएंगे, ठीक है? सो while there are a few advantages of freedom to design buildings, I believe there are far more disadvantages. No, जो advantages है freedom के, मतलब no rules के,
फ्रीडम क्या होता है? नो रूल्स, पूरी आजादी, जो मर्जी करो, ठीक है। इस फ्रीडम के जहां कुछ एडवांटेजेस है, while there are a few advantages of freedom to design buildings, I believe that there are far more disadvantages. मेरा मानना है कि disadvantages उससे बहुत ज्यादा है। तो मैंने अपना स्टैंड ले लिया। यस मैम। ओके, अब मेरा स्टैंड ये वाला है कि ये वाला है, बॉटल वाला। ठीक है। अब ये वाला स्टैंड लोगे तो अच्छी इंट्रोडक्शन, ठीक है। जिस इंट्रोडक्शन पे ऐसे रेस्ट कर जाए वो इंट्रोडक्शन अच्छी है, ठीक है। अब सबसे पहले देयर आर ए नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ज्यादा ड्रॉबैक्स है। आजकल हम क्या करते हैं, हम ये एडमिटेडली करके ना जो कम वाला है ना उसको पहला पैरा बना देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा आपके साथ मिलके चेंज करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। ओके, जो मैंने नेगेटिव्स, क्योंकि मैंने बोला है कि फ्यू एडवांटेजेस है, मतलब अ फ्यू एडवांटेजेस है, अ फ्यू है, मैंने फ्यू नहीं लिखा, अ फ्यू लिखा है, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला पैरा मैं उठा के ऊपर ला रही हूँ और ऊपर मैंने एडमिटेडली करके शुरू करना है इसको। एडमिटेडली देयर आर, फिर ऑल्सो हटा दूंगी, a few benefits to freedom in building design. कुछ benefits हैं to freedom in the building design. The main benefit is that it gives owners an opportunity to design houses according to their personal preferences, which may vary significantly from person to person. For example, people who prefer spending time with nature might want a bigger lawn and less built-up space. Furthermore, eclectic neighborhoods with diverse building designs have their own charm and beauty. अब मैंने इसमें eclectic वर्ड डाला है, eclectic। eclectic होता है, can you see the dictionary? Not Yes. following one style or set of ideas, but choosing from or using a wide variety. She has very eclectic tastes in literature. उसके बड़े eclectic, बड़े varied tastes हैं, varied, eclectic mixture of the antique and modern. His house is an eclectic mixture of antique and the modern. तो ये eclectic word का meaning है। तो जो eclectic neighborhoods हैं, they have their own charm and beauty. उनका एक अपना charm है, उनकी एक अपनी beauty है। Okay, so admittedly कुछ benefits हैं, मैंने लिखा है a few benefits हैं, तो मैंने benefits का पैरा पहले बना दिया। Admittedly there are a few benefits to freedom in building design. The main benefit is that it gives owners an opportunity to design houses according to their personal preferences. अब किसी को बड़ा लॉन चाहिए, उसको बिल्ट अप एरिया कम चाहिए, और किसी को बड़ा बिल्ट अप एरिया चाहिए, उनका परिवार बड़ा है, उनको कमरे ज्यादा चाहिए घर में, ठीक है। सो दे कैन डू अवे विद द लॉन, ठीक है। तो ये है मतलब। और साथ में दूसरा मैंने फर्दरमोर करके एक पॉइंट डाल दिया कि जो एक्लेक्टिक नेबरहुड्स है, जिनमें एक मिक्सचर है, वैरायटी ऑफ हाउसिंग है, उसका एक अपना ही चार्म एंड ब्यूटी है, ठीक है। अब हाउएवर, अब मैं अगला पैरा शुरू करूंगी। हाउएवर, अब मैंने जो देना है ये ऑपोजिट शुरू कर दिया मैंने, और हाउएवर के बाद मैंने देयर का टी छोटा कर दिया। मैं रोज जो नोटबुक्स चेक करती हूँ, ये कॉमे के बाद के वर्ड का जो कैपिटल होता है, और मैं आपको बताऊं 15 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस है, कॉमे के बाद जो कैपिटल लिख देते हैं ना बच्चे, मैंने उनके 5.5-6 से ऊपर राइटिंग में आज तक जाते हुए नहीं देखे, आज तक 15 साल में। ये इतना बेसिक ग्रामेटिकल एरर है कि कॉमे के बाद कैपिटल नहीं आना। फिर मेरे को बच्चे पूछते हैं मैम चलो ये गलती तो हो गई, वैसे ठीक था इससे। फिर मैं बोलती हूँ बेटा वैसे का मतलब ही खत्म हो गया, जब 5.5 आपका ठप्पा लग गया स्टाम्प पेपर पे, तो वैसे से आपने क्या करना है। वैसे मैं आपको खुश करने के लिए कहती हूँ, वैसे तो आपका 9 बैंड कैसे है, पर आने 5.5 है, तो वैसे का कोई मतलब रहा? बताओ। नो मैम। ये मैं इतने हार्श वर्ड्स में क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व करा है कि कैपिटलाइजेशन एरर्स ले डूबती हैं बच्चों को, और ये इतनी छोटी चीज है, इस पे फोकस ही नहीं करते बच्चे इसको इम्प्रूव करने के लिए। नोटबुक चेक करते हो, एक स्टूडेंट का कैपिटलाइजेशन आज एरर आया है, अगले दिन आया है, तीसरे दिन आया, महीने बाद आ रहा है, कॉपी चेक करनी बंद कर देती हूँ मैं, कोई फायदा नहीं बेटे, आपके बैंड तो डिसाइडेड है, आप मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी खराब कर रहे हो। और ये मिस्टेक ऐसी है कि दूसरे दिन से आप 0 कर सकते हो ना इसको 0,
Yes, ma'am. तो इसका मतलब चॉइस है आपकी कि आप नहीं जीरो कर रहे हो, जो लोग बार बार कर रहे हैं ये मिस्टेक। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ये मिस्टेक्स आपने कैपिटलाइजेशन रूल्स अच्छे से कर लो। मेरी एक वीडियो है, इफ यू रिमाइंड मी आई विल पुट इट अप, कैपिटलाइजेशन रूल्स की वीडियो 10 मिनट की होगी ज्यादा से ज्यादा, आप उसको गो थ्रू कर लेना। कैपिटलाइजेशन एरर्स आर पेनलाइज्ड वेरी स्ट्रांगली बिकॉज दे आर वेरी बेसिक मिस्टेक्स। तो एग्जामिनर को लगता है अगर इतनी बेसिक किसी को नहीं पता है तो उसकी इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल की है। अब समझ आ रही है आपको मेरी मैं जो बात कह रही हूँ? That is why such mistakes are penalized very, very, very harshly. Okay? मैम, Yes. कुछ हमारे वर्ड्स जो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल लिखे जाते हैं, वो हाँ, तो हमें कैसे वो मतलब कि पता लगेगा कि ये वर्ड कैपिटल में आना चाहिए, या ये चीज का कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर कोई किसी का प्रॉपर नेम है वो कैपिटल है, अगर मैंने आपका नाम लिखना है मैथिली, सेंटेंस के बीच में भी लिखना है that on the 25th of this month मैथिली came to my house, तो मैं मैथिली का एम छोटा डाल दूंगी तो गलत है। ओके मैम, अगर लाइक कंपनी का कोई नाम हमने मेंशन कंपनी करना का हो तो वो नाम है तो कैपिटल है। ओके मैम। हाँ, मैम जैसे तो अभी एक तो मोटिवेशन होता है, जैसे सॉरी मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन का आई थिंक एम छोटा आता है और योगा का वाई बड़ा आता है, वो क्यों? क्यों नहीं, बिल्कुल योगा का क्यों बड़ा आता है? मुझे एक तो बोला है कि वाई बड़ा ना आता है ना योगा का। ना, बिल्कुल नहीं। किसने बोला है? आप उनसे आई डोंट पूछना, रिमेम्बर। उनका सोर्स क्या है इस नॉलेज का? ओके मैम, मुझे हाँ, इस चीज का बड़ा कंफ्यूजन था कि तो मेडिटेशन का अभी एम अभी छोटा और मैंने वाई आपको क्या उसका। बोला कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कैपिटलाइजेशन रूल्स का, आप उसको गो थ्रू कर लेना। उसके बाद जो क्वेरीज आए ना, उसके बाद आप मेरे से कल परसों क्लास में कभी भी पूछ लेना। श्योर मैम, मैम वो लिंक शेयर कर देना। हाँ जी, आप मेरे को ना लिख के मैसेज उसमें डाल दिया करो ग्रुप में, फिर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अदरवाइज ना, मैं आप मेरे बाल देख लो सफेद है। नो मैम, नहीं, सच में यू नहीं स्टिल बोला। यंग। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, ठीक है, और ये धूप में सफेद नहीं हुए। ये उम्र के साथ सफेद तभी नहीं मैम यू स्टिल यंग। हुए। हाँ, आई एम यंग एट हार्ट। यस मैम। सफेद है, ठीक है। तो ओके मैम। चलो ये हो गया। However, there are a number of drawbacks of lack of regulation on building design. Primarily, it affects the uniformity of the community or the city. तो drawbacks बहुत है। सबसे पहला ड्रॉबैक है, अब मैंने पहले ऐसे में टू बिगिन विद करा था, द मेन बेनिफिट करा था, यहाँ पे मैंने प्राइमरली कर दिया, फर्स्टली भी कर सकती हूँ, ठीक है। इट मे अफेक्ट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कम्युनिटी और द सिटी। हो सकता है कम्युनिटी और द सिटी की जो यूनिफॉर्मिटी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, उनके उनके रिलेटिव्स यूके में है, और जिस लेन में क्वीन का घर है उस लेन में उनका घर है। मेरे को, मैं यूके गई नहीं हूँ, पर मेरे को जो उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने घर का बड़े पुराने आर्किटेक्चर का था, फ्रंट सारा चेंज कराया 5-6 हजार पाउंड लगा के, ठीक है। फिर वो आगे उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो कहते हैं कि आपने ये ब्यूटी स्पॉइल कर दिया, ये तो पुराना आर्किटेक्चर के लोग देखने आते, टूरिस्ट आते थे देखने। तो उन्होंने उसको ना 4-5 हजार पाउंड का फाइन लगा दिया और उनको बोला वापस वैसा करो जैसा पहले था। तो 4-5 हजार पाउंड और लग गया। तो उनको वो चेंज करना कितना भारी पड़ा, देखो, ठीक है। बलजीत, आप यूके में हो, मैं वहां का एग्जांपल दे रही हूँ। यस मैम, यहाँ ऑल हाउसेज आ रही हैं मैम, सेम लाइक सेम डिजाइन है मैम, कुछ भी हाँ, चेंज नहीं है मैम, लाइक परमिशन लेनी पड़ती परमिशन भी नहीं है ना चेंज करने की। यस मैम, और सिर्फ हम जिन्होंने इंटीरियर चेंज कर सकते हैं मैम। हाँ, एक्सटीरियर नहीं चेंज कर सकते। तो मैंने जो यस मैम। एग्जांपल आपको बताई है वो यही है कि वो ब्यूटी खत्म हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। यस मैम। For example, if a street is known for its traditionally designed houses, a modern house may reduce the aesthetics of the whole neighborhood. Secondly, lack of design regulations can compromise the safety of the residents, as home designers might not be aware of the area's vulnerability to potential natural disasters. अब हो सकता है वो एरिया earthquake prone एरिया हो और लोगों को पता ना हो, वो उस वे में घर ही ना बनाए, और अर्थक्वेक का सारा घर उनका गिर जाए, तो उनको उनकी सेफ्टी पे भी, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी रेगुलेशन चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि फ्रीडम का पहला नुकसान है कि इससे ब्यूटी खराब हो जाएगी, दूसरा नुकसान है कि उनकी सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है। अब
तीसरा जो इसमें मैंने आगे ऐसे लिखा है, secondly, lack of design regulations can compromise the safety of the residents as home designers might not be aware of the area's vulnerability to potential natural disasters. For instance, some regions are prone to natural calamities like earthquakes, and construction of multiple storied houses might increase. Some regions are prone to natural calamities like earthquakes. यहाँ पे ना कॉमा बहुत जरूरी है, नहीं तो मीनिंग खराब हो रहा है. Earthquakes and construction मैंने देखो पढ़ा ना, अब देखो मैं पढ़ूंगी तो आपको कॉमे का वैल्यू पता चल जाएगी. For instance, some regions are prone to natural calamities like earthquakes, and construction of multiple storied houses might increase the risk of collapse during such disasters. कॉमे की वैल्यू पता चल गई एंड के पहले, ठीक है. So I had to read that in one go. In addition, having design restrictions is necessary because new constructions may obstruct the light and ventilation of the older houses, which may lead to bitterness among societies. अब हमारा घर बना हुआ है, हमारा पड़ोसी अपना घर बना रहा है और वो आगे तक बड़ी ऊंची दीवार कर रहा है. हमारा धूप आ रही थी, हम रोज धूप एंजॉय करते थे, हमारे घर में धूप आनी बंद हो गई, तो मैं उनको गालियां दूंगी क्या? उनसे उनको एम्ब्रेस करूंगी नेबर्स को? गालियां दोगे? हाँ, ठीक है ना. अभी मैं कल किसी के घर गई, वो कहते हैं हमारे नेबर्स ने ना आगे सीढ़ियां ले आए हैं और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और वो अपने घर के बाहर बैठते थे धूप में कुर्सियां निकाल के, और सीढ़ियां बिल्कुल उनके ऊपर से निकल रही हैं. अब कहते हैं सारा दिन कोई आता जाता है, हमारा पूरा घर उनको दिख रहा है. कहते हैं हमारी पूरी उन्होंने प्राइवेसी खराब कर दी, हम बिल्कुल बाहर नहीं अब बैठ सकते. तो ये जो है ना, इसके लिए भी डिजाइन रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, बिकॉज इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ द ओल्डर हाउसेस, और बिटरनेस हो जाती है सोसाइटीज में. रूल्स इंश्योर दैट एवरीवन कैन एंजॉय डिसेंट लिविंग कंडीशन. रूल्स इंश्योर करते हैं कि हर एक को डिसेंट लिविंग कंडीशंस मिले. लैक ऑफ डिजाइन रिक्वायरमेंट्स कैन ऑल्सो लीड टू एंक्रोचमेंट्स ऑन टू पब्लिक प्रॉपर्टी. डिजाइन रिक्वायरमेंट्स की जो कमी है उसमें क्या हो सकता है कि एंक्रोचमेंट कर दें लोग. अब क्या हुआ, अंबाला में ना एक स्ट्रीट है, वहां पे मेरी सिस्टर इन लॉ का घर भी, ऑफिस भी था, घर भी था. पीछे उन्होंने ना वो बोला था कि इतना पीछे नहीं ले जा सकते, पर लोगों ने पीछे को एक्सटेंड करा हुआ था घर, और एक्सटेंड करा हुआ था और सबने करा हुआ था, सबने. गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी उनको दिए नोटिस कि इसको हटा लो, इनको करो, ठीक करो. नहीं करा. एक दिन सुबह सुबह 7 बजे आए और सबको बाहर निकाल दिया, निकलो, और वो चला दिए बुलडोजर, पीछे से सारे घर 14-14 फुट गिरा दिए सबके. और जिसका जो था वहां एसी लगा हुआ था, बेड थे, सब गए. इतना हार्ड स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, इतना लेना पड़ा, नहीं तो इंक्रोचमेंट. लोग आगे, सड़कें नहीं छोटी हो जाती. आप बाजारों में जाओ, कई बाजारों में दुकानदारों ने आगे तक इंक्रोचमेंट करी हुई है, सड़कें छोटी करी हुई हैं. तो ये इंक्रोचमेंट्स भी आ जाती है अगर रूल्स नहीं हो. To cite an example, many people in India have extended their front porches and gardens onto roads, constricting the traffic flow. उससे traffic flow constrict हो जाता है. तो आपको ये बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, मैंने आपके साथ बैठ के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है. मैंने in conclusion देख लो, although liberty in constructing homes according to one's preference can bring about certain benefits, its advantages, its downsides are much more. तो पैरा 1 मेरा आ गया एडवांटेजेस का. ठीक है, पैरा 1 मेरा क्या है? एडवांटेजेस का. इसको चेंज कर ले. वैसे आपने ये चीज वहां लिखनी नहीं है, पर मैं तो बुक के लिए ठीक कर रही हूँ. और मेरा जो पैरा 2 है वो बन जाएगा डिसएडवांटेजेस का, और पैरा 3 मेरा बन जाएगा डिसएडवांटेजेस का. ठीक है. सो आई हैव जस्ट मॉडिफाइड इट. मैंने कुछ ऐसे चेंज नहीं करा, मैंने कुछ व्यूज चेंज नहीं करे, मेरा सारा ऐसे वैसे का वैसे ही है. बस मैंने जो अभी मैं आपको, ये इजी वे है, इजी में है कि जैसे आपने कोई चीज कम लिखनी है उसको कम लिख के आप अपना ऐसे कंप्लीट करो, और जो ज्यादा लिखनी है ज्यादा लिख के कंक्लूजन उसी नोट पे चला जाता है. सो ये बेटर हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस एसे. तो आपको डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस वाला भी क्लैरिटी आ गई, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में. Yes, ma'am. Okay, now we go to see what the next essay is. Okay, in many cities, planners tend to arrange shops, schools, offices, and homes in specific areas and separate them from each other. अब separate के spellings देख लो.
one of the 20 most commonly misspelled words in the English language. अगर मैं आपको, आप में से, अब मुझे ऑनेस्टली बताना, सबको पता था SEP के बाद A है? No. पता था। पता, हाँ पता था, अच्छी बात है। और नहीं पता था तो अब पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड लिसनिंग में भी आ जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये है कि कुछ कुछ सिटीज में जो प्लानर्स है ना, वो शॉप्स को, स्कूल्स को, ऑफिसेस को, घरों को अलग अलग हिस्सों में बनते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, तो ऐसे करते हैं ना कई सिटीज में, चंडीगढ़ में जाओ ऐसे है ना। तो ये जो है क्या, इस पॉलिसी के, इसको कहते हैं लैंड जोनिंग, जोनिंग लैंड यूज के बेस पे। ऐसी जोनिंग के जो फायदे हैं, क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है? मैंने लिखा है कि इसके ड्रॉबैक्स कम है, नुकसान ज्यादा है। ठीक है, अब ये ऐसे है। अब मैंने पिछला ऐसे आपकी हेल्प से करा था थोड़ा सा मॉडिफाई। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इस ऐसे को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन है। इन रिसेंट इयर्स मेनी सिटी प्लानर्स टेंड टू सेग्रीगेट। सेग्रीगेट क्या होता है? सेग्रीगेशन करनी है, इधर वो उधर, इसको सेग्रीगेशन कहते हैं। कमर्शियल एरियाज, वो कमर्शियल एरियाज को सेग्रीगेट करते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज को सेग्रीगेट करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सेग्रीगेट करते हैं। तो पैराफ्रेजिंग हो गई ना पैराफ्रेजिंग? अब while I agree that there are certain drawbacks to land zoning, the benefits are significantly more. जहां मैं एग्री करती हूँ कि कुछ ड्रॉबैक्स है टू लैंड जोनिंग, बेनिफिट्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो मेरा ऐसे इंट्रोडक्शन ये वाली है कि ये वाली है, ये वाली है, पेन वाली के बॉटल वाली? बॉटल वाली। बॉटल वाली, गुड, ओके। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ जोनिंग। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो कम है उसको ऊपर करना है। तो मैं ये वाला पैरा कट कर दूंगी, यहां से कट कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे डाला। अब मैं इसको कौन से वर्ड से शुरू करूंगी बलजीत? Admittedly. There are some benefits, some disadvantages of land zoning according to land zoning, zoning of land according to use. Okay. To begin with, it encourages the use of cars because people have to cover long distances. ठीक है, admittedly कुछ disadvantages हैं zoning of land के according to use. To begin with, it discourages the use of cars because people have to cover long distances. It encourages, sorry, इससे क्या होता है कि लोगों को लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो कार्स का जो यूज है वो इनकरेज होता है। और कार्स का यूज आजकल हमें इनकरेज करना है कि डिस्करेज करना है, कंसिडरिंग द सिनेरियो? डिक्रीज करना है। So this also means that children and people spend more time traveling and this limits the time they can spend with family. इससे क्या होता है कि बच्चों को और लोगों को ज्यादा टाइम ट्रैवल करने में लगाना पड़ता है और इसके साथ जो वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो लिमिट हो जाता है। ठीक है, furthermore, mixed use enhances the vitality and security of an area by increasing the number and activity of people on the street. इससे क्या होता है, किसी भी एरिया की vitality, security जो है मिक्स्ड यूज से एनहांस होती है। और अगर ये जो डिसएडवांटेज हो गया ना इसका कि इसमें वो एनहांस नहीं होएगी जोनिंग में, ठीक है, मिक्स्ड यूज में एनहांस होती है, तो ये लैंड जोनिंग का डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज वाले पैरे में इसीलिए आया। समझ आ रही है आपको बात? In other words, there might be increased house robberies and burglaries when residential areas are isolated. अब residential areas isolate हैं, लोग कामों पे चले गए, घरों में ताले हैं, तो डाके डलेंगे और burglaries होंगी। ठीक है, समझ आ गया डिसएडवांटेजेस का पैरा?
However, अब मेरा ये पैरा कहां से कैसे शुरू होएगा? However, comma there. अब मैंने zoning based on land use ऊपर लिख दिया है. There are many benefits of segregation of segregation of Land. segregation of यहाँ पे मैं कर देती हूँ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज. थोड़ा लैंग्वेज है वो थोड़ी हर बार डिफरेंट आ जाए. कमर्शियल एरियाज. Firstly, it ensures that there is less noise nuisance in residential areas. तो अब मेरे इसमें टू बिगिन, देखो इस पैरे में मैंने टू बिगिन विद डाला था, इस पैरे में मैंने डाला फर्स्टली. ये भी आपने डिफरेंट करना है अपने हर पैरे में. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं which matter a lot between those who get 6.5 and 7. ठीक है, ये चीजें, ये ऐसे नहीं है ये 6 के लिए कोई फर्क नहीं, दोनों पैराज में फर्स्टली आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, बट ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इनको ऑब्जर्व करो they'll make a difference. Okay, firstly, it ensures that there is less noise nuisance in residential areas. There is a certain level of noise and traffic associated with the running of businesses and shops, and this can significantly impact the quality of life of the residents living in the vicinity. ठीक है, तो बहुत benefits हैं. However, मैंने बोला there are many benefits. पहले मैंने बोला था admittedly there are a few drawbacks. There are some disadvantages. फिर मैंने बोल दिया there are many benefits. Firstly, benefit बता दिया मैंने बता दिया कि noise pollution जो है noise pollution कम होएगी. ठीक है. Second, for example, their sleep might be disturbed. Okay, homeowners also lose their privacy. दूसरा मैंने also करके डाला है. अब आपको connectors वाला वीडियो भी है इंद्रुप का. आपने वो वीडियो देखा है connectors वाला? नहीं देखा तो बोलो नहीं देखा, तो मैं आज शेयर कर देती हूँ दोबारा से. बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. मैम नहीं देखा. कनेक्टर्स जो है ना वो वीडियो भी जरूर देखना, बिकॉज मेरी एक स्टूडेंट के 7.5 बैंड आए थे, उसके 7 आगे आ चुके थे. उसने मुझे बोला मैम मैंने ना ये कनेक्टर्स वाले वीडियो का चेंज इस बार लाई हूँ राइटिंग में, और मेरे 7 to 7.5 हो गए हैं. वो कनेक्टर्स वाला जो इंद्रुप सर का वीडियो है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है. मैंने वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करी अपने एस्से में, and my band score rose from 7 to 7.5. Okay, she had taken the test 2-3 times I think. 8777 रिक्वायरमेंट वाले बच्चों को ये बड़ा डिसएडवांटेज है. किसी में आधा कम रह जाए चाहे लिसनिंग में, they have to take the test again just for 8777 चाहिए in one go. Homeowners also lose their privacy. तो also जो है ये स्टैंड आउट नहीं करता है ना, कनेक्टर बीच में ही आ गया, स्टैंड आउट नहीं कर रहा. जो फर्दर मोर ओवर वो जो बहुत ज्यादा बच्चे यूज करते हैं ना वो स्टैंड आउट करते हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते. Secondly, land use zoning also helps to control land prices for residential areas. अब अगर रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लगा सकते हो तो रेजिडेंशियल एरिया की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे हम कमर्शियल जो है ना वो कमर्शियल, क्योंकि यहाँ पे हम ये इन्होंने बिजनेस करना है तो इनको बहुत फायदा होता है, तो वो ज्यादा पैसे मांगते हैं. अब जिस एरिया में मेरा हॉस्पिटल था पहले वो रेजिडेंशियल एरिया था, वो कमर्शियल डिक्लेयर कर दी रोड. अब वहां पता है क्या है, वहां सडनली लैंड प्राइसेस हैव गॉन अप और किराए बहुत बढ़ गए हैं. किराए ऐसे बढ़ गए हैं कि जितना हमारा घर है उसके ग्राउंड फ्लोर का किराया ही 1-1.5 लाख महीने का हो गया, और फर्स्ट फ्लोर का भी 70-80 हजार है. तो वो मतलब किराए बड़े बढ़ गए हैं उस एरिया में, बिकॉज कमर्शियल एरियाज में डेफिनेटली किराए से. अब किसी ने उस एरिया में रहना है तो वो सोच भी नहीं सकता, बिकॉज रहने के लिए वो वैसे ही महंगा हो गया, अब रहने के रहा ही नहीं है. और कमर्शियल एरिया की वजह से रहने लायक वैसे ही नहीं रहती जगह, बिकॉज नॉइज पोल्यूशन होती है और बहुत और पोल्यूशन होती हैं. In addition, if all shopping is confined to one area, such places can also attract tourism. For example, Sector 17 Chandigarh is a well-known shopping center and is an attraction for tourists. Finally, segregation allows local authorities to better manage parking and traffic. Parking and traffic better manage हो जाती है. Summing up, while land use zoning has certain downsides, it is certainly worthwhile
कंसिडरिंग द इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स। ठीक है, अब इसकी जो मैंने वो करी है उसमें हमने पहले पैरे में क्या करे है, एडवांटेजेस पहले पैरे में, पहले पैरे में डिसएडवांटेजेस, दूसरे पैरे में हमने कर दिए एडवांटेजेस, और तीसरे पैरे में फिर और एडवांटेजेस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस ऐसे। आपको दो ऐसे ये है डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, आपने दो ऐसे डिस्कस कर लिए, तो आई थिंक दो ऐसे डिस्कस करके आपको ये ऐसे का कॉन्सेप्ट तो 200% क्लियर हो गया होगा। हो गया? ओके, Yes. लेट अस सी दिस ऐसे। लास्ट ऐसे आज का ये करेंगे, ये भी एग्री डिसएग्री। आज बाय चांस ना सब तरह के ऐसे नहीं कवर हुए, डजंट मैटर। थर्सडे और फ्राइडे फिर हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे को जो अगले ऐसे करेंगे उसमें सारे कवर हो जाएंगे और भी। ठीक है, सो अच्छी बात है, आज आपके जो है ये ओपिनियन एसेस डिस्कस हो गए, आपको ओपिनियन एसेस की सारी क्लैरिटी हो गई। ओके, अब इस ऐसे को देखो। ऐसे कह रहा है हाउसिंग शॉर्टेज इन बिग सिटीज, हाउसिंग शॉर्टेज इन बिग सिटीज कैन कॉज सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। जो हाउसिंग शॉर्टेज है बड़े शहरों की, उससे बहुत सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। हाउसिंग शॉर्टेज के बिग सिटीज में बड़े सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, ओनली गवर्नमेंट एक्शन, सिर्फ गवर्नमेंट एक्शन सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को। ओके, ओनली गवर्नमेंट एक्शन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? ठीक है, हाउसिंग शॉर्टेज जो है उससे बहुत सीवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। ओके, और अब ये जो है ये वाली स्टेटमेंट फैक्ट है कि कोई कुछ कह रहा है? Housing shortage in big cities can cause severe social consequences. Is it a fact or is someone saying this? Fact. It's a fact. हाउसिंग शॉर्टेज है बड़ी सिटीज में, उससे सीवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। अगर हमारे शहर में हाउसिंग प्रॉब्लम है तो उससे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है ना, ये फैक्ट है। अब आता है अगली सेंटेंस में, कुछ लोग सोचते हैं। अब जिससे आपने एग्री डिसएग्री करना है, आपने हाउसिंग शॉर्टेज सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है, इसके साथ एग्री डिसएग्री करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, इसके साथ एग्री डिसएग्री करना है। गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके लिए ना आपको, आपका जो आइल्स का एस्से है, जो आपका आइल्स का एस्से है ना, वो एक जंगल है। जंगल में से आपने अपना पेड़ पहचानना है जिसके साथ आपने एग्री डिसएग्री करना है, और बाकी पेड़ों को, बाकी जो पेड़ पौधे हैं उनको आपने उनकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अगर आपने वो जो अपना पेड़ नहीं पहचाना और आपने ऊपर वाले सेंटेंस के साथ एग्री डिसएग्री कर दिया, तो आपका एस्से क्या होगा? रॉन्ग। टोटली रॉन्ग टास्क अचीवमेंट। ओके, तो एस्से जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, समझने के ऊपर ही है, तो आपकी इंट्रोडक्शन वो वाली हो जाएगी, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन ही गलत नोट पे शुरू करी, तो आपकी इंट्रोडक्शन ही ये हो जाएगी। ओके, फिर आपका ऐसे तो गिर ही जाएगा। ठीक है, फिर ना तो आपको ग्रामर बचा पाएगी, ना आपको कोहेजन कोहेरेंस बचा पाएगी, ना आपको लेक्सिकल रिसोर्स बचा पाएगा जो वर्ड्स डालते हो बड़े बड़े। ठीक है, कुछ नहीं बचा पाएगा। आपको ऐसे पहचानना है कि क्या है, हमने किसके साथ एग्री डिसएग्री करना है, तभी जाके आपका ऐसे में अच्छे बैंड आएंगे। पर ऐसा कुछ पहचानना, ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ऐसे को पहचानने में? आप बताओ। नो मैम। हाँ, तो बस सिर्फ 3-4 बार पढ़ो, हिंदी करो, पंजाबी करो, गुजराती करो, जो भी आपकी लैंग्वेज है। हाँ, गुजरात के बच्चे भी हैं मेरी क्लास में बहुत सारे, और बड़ी प्यारी आवाजें हैं सबकी भाई, और बहुत प्यार से बोलते हैं। तो मेरा तो दिल करता है पंजाब छोड़ के गुजरात आ जाऊं। ठीक है,
तो चलो ऐसे बात कर रही हूँ। ऐसे सारी लैंग्वेजेस मुझे सारे बहुत अच्छी लगती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का शौक बड़ा है, बट आती नहीं है ज्यादा। तो हाउसिंग शॉर्टेज सिवियर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम। क्या आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री? अब ये एग्री डिसएग्री ऐसे है, इसमें कुछ कंसेशन डाला है। मतलब आप एग्री डिसएग्री ऐसे में, मेरे को बच्चे पूछते हैं मैम 2 पैरे एग्री के एक डिसएग्री का बना दे। अगर एग्री, आप किसी एक चीज से एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। मैं कहती हूँ ये पेन बहुत अच्छा है, डू यू एग्री और डिसएग्री? हाँ, मैं एग्री भी करती हूँ और डिसएग्री भी करती हूँ, अच्छा भी है और नहीं भी। ऐसे कर सकते हो? बोलो। नो मैम। हाँ, आप कंसेशन दे सकते हो, कंसेशन दे सकते हो, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, पर ओवरऑल अच्छा है। तो एग्री है, बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और वो जो प्रॉब्लम है उसका एक पैरा बना दो और अच्छे के 2 पैरे बना दो, तो वो कंसेशन हो गया। पर आप ये नहीं कह सकते अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। समझ गए ना? अब इस ऐसे में हमने क्या करा है, वी हैव एग्रीड विद अ कंसेशन। ओके, हमने कहा है कि हाँ, गवर्नमेंट कर सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पर जो रियल एस्टेट में लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और आम लोग भी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। और बेसिकली कौन कर सकती है? मैंने क्या एग्री करा है? गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट। ठीक है। पर रियल एस्टेट के लोग और आम लोग भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, और वो मैं प्रूव करूंगी ऐसे में। तो आपको कंसेशन के साथ एग्री या डिसएग्री करना सीख लोगे। इट इज नॉट पार्शली एग्री। पार्शली एग्री तो ऐसा वर्ड है कि अगर आपने ऐसे में डाला ना, एक हिंदी में कहावत है, कुल्हाड़ी पे पैर मारना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है ना कहावत। तो पार्शली एग्री या पार्शली डिसएग्री वर्ड डालोगे तो पैरों पे कुल्हाड़ी, नहीं, आप पैर उठा के कुल्हाड़ी पे ले जा रहे हो, ये लो। ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्री या डिसएग्री आइदर स्ट्रांगली करना है, और स्ट्रांगली हमने 2 एसेस में करा, आपने सीख लिया। अब हमने विद ए कंसेशन आपको सिखाना है कि कैसे कर सकते हो। लेट अस सी। रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन क्या होती है? जो बड़ी क्विक अर्बनाइजेशन हो रही है, जो बड़ी तेजी से लोग जो है वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, उसको कहते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। इन बिग सिटीज इज लीडिंग टू लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। तो हाउसिंग शॉर्टेज, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई बात, उससे हाउसिंग शॉर्टेज हो रही है। It is believed by some that only government has the power to solve this problem. While I agree that government can play a major role to mitigate the problem of housing shortage, I believe that the people in the real estate sector and ordinary people can also help in this regard. Help कर सकते हैं, करना किसने है? गवर्नमेंट, ठीक है। There is no doubt that government has a major role in alleviating the problem of housing shortage. The government has land banks in city centers where the housing shortage is the most pronounced. तो गवर्नमेंट के अपने लैंड बैंक है, गवर्नमेंट ने अपने लैंड रखे हुए हैं हाउसिंग सिटी सेंटर्स में, जहां पे हाउसिंग शॉर्टेज सबसे ज्यादा है। Secondly, housing goes hand in hand with other government objectives such as poverty reduction and employment generation. तो secondly जो housing है वो गवर्नमेंट के जो दूसरे objectives होते हैं कि poverty कम करनी है, employment देनी है लोगों को। अब अगर वो land, जो land bank है उसमें सरकार कहे कि चलो यहाँ पे हम HIG या LIG houses बनाते हैं, तो employment भी बहुत लोगों को मिल गई और गरीबी भी हट गई। तो गवर्नमेंट के और भी 2 रोल्स इसके साथ सॉल्व हो गए ना। For example, in India, government promotes both housing and employment by giving jobs to local masons and construction workers. However, अब मैंने however करा है, government is not solely responsible to address the issue of housing. Solely responsible नहीं है. The real estate companies can also address the issue of housing shortage in many ways. They are experts in the building and construction sector, and they can assist the government in providing low cost housing. वो government को assist कर, because उनको expertise है इस चीज की, ठीक है। वो LIG हाउसिंग सरकार बनाएगी, सरकार से भी सस्ती सरकार को बना के दे सकते हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं ना गवर्नमेंट की, ठीक है। For instance, in places where the houses made by government have not proved up to the mark, there these companies can step in and fill the void. In this way, they can improve their image and also fulfill the housing deficit. In places where these housing companies have provided low-cost housing,
slum areas have stopped developing further and this has improved the situation considerably. जिन एरियाज में हाउसिंग कंपनीज ने लो कॉस्ट हाउसिंग दी है, वहां पे झुग्गी झोंपड़ियां वाले एरियाज डेवलप ही होने बंद हो गए और सिचुएशन इंप्रूव हो गई. समझ आ गया आपको ये पॉइंट? पीपल हैव ऑल्सो, एक पैरा मैंने दे दिया रियल एस्टेट वाले कैसे हेल्प कर सकते हैं, और मैंने दिया था पीपल भी हेल्प कर सकते हैं, उसका भी एक पैरा बना दिया. People also have a responsibility to help the government in addressing the problem of housing shortage. They must see to it that if government is taking steps, then they also proactively back the government. For instance, when governments come out with housing schemes, people should come forward and invest in those. अब लोग गवर्नमेंट के आपने नोटिसेस देखे अखबारों में आते हैं कि वहां पे ऑक्शन हो रही है, सरकार की ऑक्शन हो रही है प्लॉट्स की, तो लोग जहां वहां जाके दुनिया लगाते हैं ना, प्लॉट लेते हैं ना सरकार से. दिस इज हाउ पीपल कैन हेल्प. तो सरकार के पास पैसा चला जाता है, फिर सरकार वहां पे घर बनाती है और जब बन जाते हैं उन लोगों को दे देती है. ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड फास्टर एंड it can be addressed faster and better. To conclude, it is irrefutable that governments have a major role in providing low cost housing, but the real estate companies and people themselves can definitely back them. So it would be दो बार आ गया would be. So it would be wrong to say that only governments can solve the issue. तो ये गलत होगा कहना कि सिर्फ सरकार ही सॉल्व कर सकती है, बाकी भी है. तो एक तरह से ये है डिसएग्री एग्री. बेसिकली गवर्नमेंट का मेजर रोल है तो एग्री है, बट अदर्स के गवर्नमेंट इज सोनली रिस्पॉन्सिबल, इसके साथ डिसएग्री है, ओनली गवर्नमेंट के साथ डिसएग्री है, तो उसके साथ दूसरे भी है. तो कंसेशन है साथ में कि मेजर रोल गवर्नमेंट का है, बट अदर पीपल कैन ऑल्सो हेल्प, ऑर्डिनरी पीपल कैन ऑल्सो हेल्प. ठीक है, okay, so this was the last essay that I had to discuss today. I hope आपके opinion essays के आज काफी clarity हो गई. Yes, ma'am. opinion essay हो गया. ठीक है. So tomorrow first we'll have one class of this thing as reading passage. And after that, there is a class for bar graph for the academic students. There is no writing class for the GT students tomorrow. Wednesday, we have a reading and open speaking class. Thursday and Friday, reading and essay discussions. Okay? So I take your leave now and we'll get back tomorrow at 10 sharp. Okay? Bye. Thank you, ma'am. Bye.